गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सीबीएसई ने कुछ नए गाइडलाइंस जारी किया है, रिवाइज्ड सिलेबस डिक्लेयर किया है, उसी को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सीबीएसई हैज़ declared or published that revised format of question paper that we have to see, so that we can accordingly prepare for the examination for the year 2020 and 21. So actually now there are two parts in the question paper. Part A consists of 40 marks and part B 40 marks. Under part A you will find two unseen passages, 10 marks each. Okay, in each questions 12 questions will be there, sub questions will be there with internal choice of 10 questions, means out of 12 you have to attempt 10 question in question number 1 and question number 2 simultaneously. And then again there will be seen passages from your main course book, reference to the context, that is also for 10 marks. One passage from prose and one from poetry, stanza from poetry, and 10 marks for grammar. So in all it is of 40 marks. So quickly we will have a glance over it. See the part A, reading section, multiple choice questions based on discursive paragraph passage on 400 to 450 words. इसका लेंथ रहेगा. 12 questions will be there, you have to attempt any 10, and it is all questions will be have multiple choice questions, so you have to choose the correct option. 1 marks is, that is 10 marks, 10 question. Then question number 2, again factual based passage will be there with the statistical data or chart or pie chart or visual output will be there, and 12 questions will be given, all multiple choice questions. You have to attempt only 10 out of 12, 1 marks each, that is for 10 marks. नाउ यहाँ देखिए लिटरेचर सेक्शन में सिन पैसेज विल बी देयर फ्रॉम प्रोज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज और ड्रामा, आपका मेन जो कोर्स बुक है उसमें से, इस फर्स्ट फ्लाइट में से, इसमें एक 2 पैसेज आपको दिए होंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और दिस इज़ फॉर 5 marks and it is also multiple choice question. So then question number 5, again multiple choice question based on the poetry. 2 stanzas will be provided, and out of 2 you have to attempt only 1, that is for 5 marks, all multiple choice. Then on grammar section you will have to attempt 10 questions, okay, out of 12. This is also multiple choice questions, 1 marks each, 10 items will be tested for 10 marks. So this is also multiple choice questions. Now see the area of testing under grammar: tenses, models, subject, verb, concord, reported speech. Under reported speech, commands and requests, statements and questions, ये 3 ही आपको यहाँ पे दिया गया है, इसी के ऊपर आपका रिपोर्टिंग स्पीच भी टेस्ट होगा. एंड द 5th टॉपिक इज डिटर्मिनर्स. देन डिलीटेड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या डिलीट किया गया है? यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस डिलीटेड, क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज सब डिलीट कर दिया गया है, और प्रीपोजिशन भी डिलीट किया गया है, यानी इसके ऊपर आपका टेस्टिंग नहीं होगा. देन कम टू द पार्ट बी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अंडर राइटिंग सेक्शन इट्स अ मेजर चेंज. फॉर्मल लेटर, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स, ओनली फॉर्मल लेटर आएंगे आपको. 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे सिचुएशनल, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 विद द वर्ड्स लिमिट 100 to 120 वर्ड्स, दैट इज़ फॉर 5 मार्क्स. सो लेटर राइटिंग को 5 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया गया है. एंड राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है ऑन द गिवन आउटलाइन, डाटा, चार्ट, ओके, विजुअल जो आउटपुट रहेगा उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है. वर्ड्स लिमिट अगेन 100 to 120 वर्ड्स, और वेटेज दिया है इसको 5 मार्क्स का. सो राइटिंग सेक्शन में राइटिंग आपको 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया गया है अंडर पार्ट बी. और 30 मार्क्स का आपका भी लिटरेचर सेक्शन है, उसको भी देख लेते हैं किस तरह से आने वाला है. ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन इन योर नोटबुक इन द बिगिनिंग and plan accordingly. So now under literature section, question number 3, 4 out of 6 short answer type questions to be answered in 20 to 30 words. So 6 questions आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 questions अटेम्प्ट करना है. अब ये जो 6 questions है, ये आपके 3 रहेंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट से, मेन कोर्स बुक से, और 3 questions will be from footprints without fit. तो इसमें से 2-2 आपको अटेम्प्ट करना है, 2-2 questions, that is 4 questions in all, और ये हो गए आपका 8 मार्क्स, 2 मार्क्स का ईच है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर 4,
4 out of 6 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words. थोड़ा लेंदी है बट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है. इसमें से अगेन 3 questions will be there from first flight, 3 questions from footprints without feet, and you have to attempt 2 from each the textbook. This is very important. 2 from your main course book and 2 from your फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. सो इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा यहाँ पे 3 में से आपको 2 करना है फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड 3 आउट ऑफ 2 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. इसको 3 मार्क्स ईच है. सो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए. सो ये 12 मार्क्स के लिए है. सो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से ये हो गए 8 + 12 20 मार्क्स के लिए. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट. आपका जो मेन कोर्स बुक है इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1. वर्ड्स लिमिट दिया है 100 to 120 वर्ड्स एंड दिस इज आल्सो फॉर 5 मार्क्स. एंड क्वेश्चन नंबर 6 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन. वर्ड्स लिमिट इज अगेन 100 to 120 वर्ड्स. तो दिस इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सो 2 long answer questions, 1 from your main course book and 1 from supplement reader. You have to attempt 5 marks each. So ये और डिलीटेड पोर्शन अब देखेंगे हम आगे क्या डिलीट किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ऑफ योर स्कूल्स फ्रॉम ओके लॉन्ग टाइम. सो ये समिति ने और इस CBSE ने आपको एक राहत यहाँ पे दिया है. फर्स्ट फ्लाइट जो आपका मेन कोर्स बुक है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 इसमें से जो 5 टॉपिक डिलीट किए गए हैं 5 टॉपिक्स. नंबर 1 हाउ टू टेल वाइट एनिमल्स, एक पोएम डिलीट कर दिया है. ट्रीज डिलीट कर दिया है. फॉग पोएम डिलीट कर दिया है. मिचबिल द ऑटर लेसन इज डिलीटेड एंड फॉर एनी ग्रेगोरी ये पोएम भी डिलीट कर दिया है. और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो है आपका सप्लीमेंट रीडर इसमें से भी 3 लेसन्स आर डिलीटेड. द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, the book that saved the earth. These 3 lessons are deleted, so you need not to study these 3 lessons and the 5 topics mentioned above from your main course book. Now words and expression जो वर्कबुक था वो भी डिलीट कर दिया गया है. और इसके अलावा आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. इंटरनल असेसमेंट में स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल को 5 मार्क्स का वेटेज दिया है. योर टीचर विल ओके टेक द एक्टिविटी like speech and debate competition and other activities about listening and speaking. So that will be for 5 marks and other weightage will be okay there. So this is 80 marks question paper format. Please note it down and study accordingly. I hope that you will do better. Wish you all the best. Thank you very much.